A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, after the completion of the pre-board first examination, we are talking about the second last chapter of part B, that is an accounting ratio. So in the last video, we discussed the first two important accounting ratio, that is an liquidity ratio and solvency ratio. And now we are moving to the remaining two ratio which are covered in this chapter, that is an activity ratio and profitability ratio. So in this video, we discussed the various types of the activity ratio and various types of the profitability ratio. With the help of the activity ratio, we find out the various type of turnover ratio. Basically, you know very well, activity ratio can also known as in turnover ratio. And profitability ratio, with the help of the profitability ratio, we find out the ability to earn the profit by the firm. यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की हेल्प से एक फर्म की प्रॉफिट एबिलिटी को चेक किया जाता है कि एक फर्म प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी एबल है. So in the activity ratio we discussed a various types of the ratio, that is an working capital turnover ratio. Okay, because activity ratio is also known as turnover ratio. So very popular ratio is an working capital turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, trade payable turnover ratio, trade receivable turnover ratio, fixed assets turnover ratio, current assets turnover ratio. Okay, so one by one in this video we'll discuss all the types of the turnover ratio, and thereafter we will move to the last type of the accounting ratio, that is in profitability ratio. So without creating any delay, let's we move to the important ratio of your syllabus. Talking about the cost of revenue from operation, you know very well what is the meaning of cost of revenue from operation. That is, a cost of revenue from operation will be cost of revenue from operation means the first formula which are related to the cost of revenue from operation is opening inventory plus purchase plus direct expense minus closing inventory. यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी. दूसरा तरीका होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का, वो होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. बिकॉज यू नो वेरी वेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग सेल्स कहते हैं. So this is a formula which are related to the cost of revenue from operation, which are used in the current assets turnover ratio as well as the working capital turnover ratio. In the whole process, one more thing is very important. What is the meaning of revenue from operation? Please note down. Revenue from operation का मतलब होता है basically revenue from operation means net sales. Revenue from operation means net sales. Net sales means sales minus सेल्स रिटर्न. और कंपनी के केसेस में यू नो वेरी वेल, कंपनी के केसेस में हम लोग जनरली ज्यादा कुछ डाउट नहीं रखते हैं, बिकॉज सेल्स को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न. So this is a second very important which are related to this point. And now the third very important point is what is the meaning of working capital. हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया सर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया. वर्किंग कैपिटल को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इट मींस जब भी आप वर्किंग कैपिटल को लोगे तो वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. और करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? यू नो वेरी वेल, करंट एसेट्स इंक्लूड ऑल द एसेट्स which are converted into cash within 1 year, like cash at bank,
cash in hand, marketable securities, inventories, prepaid expense, accrued income. Okay, so these things will be included in the current assets. ये करंट एसेट्स का एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो में ऑलरेडी बता दिया गया है बहुत ही क्लियरली. और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज का, सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच आर पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी वो लायबिलिटी जिसे हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में पे करना पड़ता है. अब रही बात करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या हैं, सो बैंक ओवरड्राफ्ट, bills payable, creditors, outstanding in expense and advance income. These are the four examples which are related to the current liability. So I hope it is clear for you. So हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो के तीनों रेशियोज को स्टडी कर लिया. What is the formula of current assets turnover ratio? What is the formula of current fixed assets turnover ratio? And what are the formula of working capital turnover ratio? And what are the explanation regarding this formula? As you can see that the three important notes which are useful for the calculation of the remaining three activity ratio. So now we will move to the numerical part. Let's we take the some numerical question, and with the help of this question we have to solve the question. कैसे हमें करंट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, कैसे हमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, कैसे हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है. So as you can see that on your screen, the question is question number 40. The following details have been given to you for Gupta Limited for 2 years. इस क्वेश्चन में 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, that is 2017-18 and 18-19. You are required to find out the fixed assets turnover ratio. आपको fixed assets turnover ratio कैलकुलेट करना है. वैल्यू क्या दी हुई है, फिक्स एसेट्स एज रिटेन डाउन वैल्यू 1,25,000 फॉर 17-18, 1,75,000 फॉर द 18-19, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर नो वेरी वेल. आपको देख रहा है एकदम क्लियरली, ये चीज एकदम क्लियरली आपको दिख रही है कि so in this question you can see that we have to talking about the fixed assets turnover ratio. Due to the some mistake, you know very well, we write down the formula is current assets instead of the fixed assets. So please correct it firstly. The formula of fixed assets turnover ratio is cost of revenue from operation divided by fixed assets, not a current assets. करंट रेशियो विल बी टेकन इन केस ऑफ द करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी जब हम लोग करंट एसेट्स सभी डिनोमिनेटर में लेते हैं जब करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और जब हम फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो सिचुएशन में हम लोग फिक्स एसेट्स लेते हैं. और ये फिक्स एसेट्स कैसा फिक्स एसेट्स होता है, दैट इज द नेट फिक्स एसेट्स. ये याद रखना, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन. सो फिक्स एसेट्स की कौन सी वैल्यू लेते हैं, दैट इज नेट फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स में से माइनस होना चाहिए डेप्रिसिएशन, तभी हम वो सारी वैल्यूज को लेते हैं. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. एज यू कैन सी दैट द क्वेश्चन, इसमें हमें फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर द 2 इयर्स, दैट इज 2017-18 एंड 2018-19. ओके, सो लेट्स वी सॉल्व इट. एज यू कैन सी दैट इन द ईयर 2017-18, इन द ईयर 2017-18 में अगर आप देखो तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो विल बी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज फॉर द ईयर 2017-18 इज 6,25,000 एंड द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज 1,25,000. सो आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा इन द ईयर 2017-18 दैट इज 5 टाइम्स. और वही अगर आप 2018-19 में कैलकुलेट करोगे तो आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है वो उसकी वैल्यू जो थी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वो थी 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,75,000. सो इट विल बी टेकन एज द 4 टाइम्स. सो यू कैन सी दैट कंपनी का जो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो 2017-18 और 18-19 में कितना हो गया है, 5 टाइम्स, ऑफ 18-19 में हो गया है 4 टाइम्स, यानी ये घट रहा है.
Okay, so this is a solution of question number 50. Now let's we move to one more question, that is illustration number 42. The question number 42 is find out the working capital turnover ratio. The question number 42 is calculate working capital turnover ratio, and in this question is saying that the cost of revenue from operation is 1,20,000, current assets is 80,000, and current liability is 60,000. So calculate working capital turnover ratio. आपको working capital turnover ratio निकालना है. So you know very well how we calculate the working capital turnover ratio from this situation. So in this question, you know very well what is the formula of working capital turnover ratio. The formula of working capital turnover ratio is मैंने आपको बताया था इसमें हम दोनों सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी ले सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी ले सकते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड किससे करते हैं? इट विल बी डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल, और ये रेशियो भी किसमें कैलकुलेट किया जाता है? दिस रेशियो इज आल्सो कैलकुलेटेड इन टाइम्स. सो इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला को वैल्यू को पुट करेंगे. देख रहे होंगे आप लोग कि कितना इजी क्वेश्चन है कि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज क्लियरली गिवन. द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द क्वेश्चन इज 1,20,000, बट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू नहीं दी है. तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? करंट एसेट्स की वैल्यू है 80,000 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू है आपकी 60,000. सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, सो ये आ जाएगा आपका 6 टाइम्स. सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट रेशियो इज the next question is which are related to the current assets turnover ratio. Okay, so as you can see that on your screen the question is okay, so current assets turnover ratio का question please note down. Suppose there are 2 years, अगर आपके सामने 2 ईयर दिए गए हों क्लियरली 2015 और 2016, सपोज 2 ईयर दिए हो 2015 एंड 2016 और एक ईयर दिया हो 2016 एंड 2017, और उस ईयर में आपको निकालने को कह रहा है कि दोनों ईयर का आप क्या कैलकुलेट करो? करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो. वैल्यू गिवन है, करंट एसेट्स की वैल्यू है 2015 में 50,000, 15-16 में और 16-17 में भी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? सेम 50,000. और साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है फॉर द 15-16 दैट इज 3 लाख एंड 16-17 फॉर रुपीज 4 लाख. ओके, एज वेल एज क्वेश्चन गिवन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है. Gross profit in the 15-16 is 50,000 and in the 16-17 is 1 lakh. Question is asking about the calculate the current assets turnover ratio. Current assets turnover ratio find out करिए दोनों साल का, 15-16 का भी कैलकुलेट करिए और 16-17 का भी कैलकुलेट करिए. So you know very well what is the formula of current assets टर्नओवर रेशियो. करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो वेरी वेल. करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स. ओके, सो चाहे 15-16 हो चाहे 16-17 हो, तो अगर हम इन दोनों का सॉल्यूशन करें 2015-16 और 2016-17, तो उसमें हमें पहले क्या चाहिए होगा? उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट
फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो जब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये दो वैल्यू होती है. और इस क्वेश्चन में देखो 1560 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3 लाख और इसमें कितना है 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट. तो 3 लाख माइनस 50,000, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 2,50,000. एंड इन द ईयर 1617 सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए. 4 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, सो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 लाख. सो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया. करंट एसेट्स इज क्लियरली गिवन 50,000 एंड 50,000, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे. इन 1516 में कितना लेंगे 2,50,000 एज अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, सो द आंसर इज 5 टाइम्स इन द ईयर 2015-16. एंड इन द ईयर 16-17 आप क्या लोगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 equals to 6 times. So this is a solution of this question. Okay, so अब हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट कर लिया है. एक्टिविटी रेशियो में इसमें हम लोगों ने कितने रेशियोज पढ़े. इन द एक्टिविटी रेशियो वी स्टडी द 6 रेशियो, बेसिकली द 6 रेशियो: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. अभी मैंने इसके सिंपल क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस किया है. अगर हम थोड़ा सा इस रेशियोज में और भी चीजों को इंफॉर्मेशन को गैदर करें तो यू नो वेरी वेल इन द एक्टिविटी रेशियो इन सारे रेशियोज के साथ कुछ अलग चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. एंड एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 365 डिवाइडेड बाय एवरेज 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्टिविटी रेशियो. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट type of the question, last type of the accounting ratio, that is a profitability ratio. And this ratio is very important for us because most of the question are asked by the examiner which are related to the profitability ratio. Profitability ratio. Okay, so what is profitability ratio, let's we discuss it. The question is that sir how many ratio we discussed, हमें डिस्कस करना पड़ेगा इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, कितने रेशियो पढ़ने पड़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. So you know very well there are basically few ratio which are included in the profitability ratio, that is a gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, operating ratio and return on capital employed. इतने रेशियो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेशियो से जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, which are included in profitability ratio. The first ratio will be gross profit ratio. Okay, basically gross profit ratio का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान होता है एंड बार बार आप जानते भी हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. और ये रेशियो किसमें कैलकुलेट किया जाता है, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज. ये रेशियो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है एंड दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज द जीपीआर. जीपीआर इक्वल्स टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब क्वेश्चन उठता है सर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा. अभी हम लोगों ने जस्ट इस पे डिस्कशन भी किया था. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम स्टैंडर्ड वर्ड में कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, अब रही बात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. इट मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, यानी उसमें से रिटर्न माइनस होना चाहिए. अब सवाल ये उठ रहा होगा सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. यू नो वेरी वेल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया आपको, वही होता है
दैट इज ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। और ये परचेज भी कैसा होगा, नेट परचेज होगा, प्लीज नोट डाउन इट, दिस इज अ नेट परचेज। नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। This is a cost of revenue from operation. So please note down in your copy, the first ratio is gross profit ratio. Okay, so now this is the first ratio, that is a gross profit ratio. अब हम लोग चलते हैं दूसरे रेशियो पे जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। पहले मैं आपको कुछ रेशियो से इंट्रोड्यूस करा लूं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। So the next ratio is net profit ratio. The second ratio is net profit ratio. So how we calculate the net profit ratio? Please note down in your copy. The second ratio, that is a net profit ratio. The formula of net profit ratio is net profit divided by revenue from operation into 100. सर बहुत इजी है, यानी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या लेना पड़ता है, नेट प्रॉफिट। बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की मीनिंग सेम रहेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज अ नेट सेल्स। एंड सवाल उठता है सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको तो पता ही है, 11th में पढ़े हैं आप, तो यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट मींस द फर्स्ट फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ओके, indirect income. So net profit equals to gross profit minus indirect expense minus indirect income. यहां पे नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से है, और अगर टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ नहीं लेना पड़ेगा। यानी हमें यहां प्रॉफिट, कौन सी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट which are transferred from the statement of profit and loss। जो प्रॉफिट हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करते हैं, यू कैन सी दैट कैसे हम लोग 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसका नाम अब चेंज हो जाता था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नोन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो उसका एक प्रोसेस अलग होता है। तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आप देख रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट की मीनिंग वही रहेगी जो पहले थी, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। ओके, सो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, आपने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यहां पर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एनी एक्सपेंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। as you know very well what are the indirect expense, it was already discussed in the class 11th। and what are the indirect income? indirect income का यहां मतलब है इनडायरेक्ट इनकम का यहां रिलेशन है अदर इनकम से। किससे रिलेशन है, इनडायरेक्ट इनकम का यहां रिलेशन है अदर इनकम से। ओके, so the third ratio will be, the third ratio of profitability is operating profit ratio। operating profit ratio, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 11th में आपको याद हो, मैं बार बार 11th की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपने 11th में बहुत ही प्रॉपरली, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है ये सारी चीजें, कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑल द थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द क्लास 11th, और ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कैलकुलेट करना सीखी भी थी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100, और दिस रेशियो इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग तो वही है जो पहले रहेगा, बट चेंजेस कहाँ होंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी आपको क्या करना है कि नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करेंगे दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। ओके, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज with the help of gross profit. If question is given the information regarding the gross profit, तो gross profit में indirect expense नहीं माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम। सो ये बेसिकली गिवन होगा दो तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या तो हम नेट प्रॉफिट अप्रोच से कैलकुलेट कर लें या तो ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लें। और इन सब के एक्सप्रेशन क्या है आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इसको और क्लियर करना है तो प्लीज गो टू योर क्लास 11th बुक, बिकॉज कभी भी कोई नॉलेज बेकार नहीं जाता है चाहे आप अभी पढ़ो चाहे 10 साल पहले पढ़े होंगे, ऑल द थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर द योर फर्दर स्टडी। दैट्स वाई इसीलिए लोग कहते हैं ना कि 11th पढ़ लो 12th में समझ में आएगा। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू द इन द फर्दर स्टडी। तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल कर रहा होगा कि यस सर अब समझ में आ रहा है कि आखिर हमको क्यों कहा जाता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर द फर्दर स्टडी। अगर आप फ्यूचर में अच्छे से उस सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो प्रेजेंटली या बेसिक चीजें आपकी प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। So now we discuss the today's last ratio is operating ratio. Sir, what is operating ratio? Clear it. And what are the difference between the operating profit ratio and operating ratio? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है दैट इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस के सेल्स और उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में कितना रिलेशन, कैसा रिलेशन है। यानी कंपनी अगर 10 लाख रुपए का सामान बेच रही है, 10 लाख रुपए का सेल कर रही है और कंपनी 1 लाख रुपए प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है, मींस उसका 10% कैसा रेशियो है, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 10% इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिनोट्स कि कंपनी जो है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% क्या अर्न कर रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है। बट ऑपरेटिंग रेशियो का यहां मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। इट मींस ऑपरेटिंग रेशियो gives the relationship between establish the relationship between operating expense and revenue from operation. Please note down, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो express the relationship between the operating profit and revenue from operation, whereas operating ratio establish the relationship between operating expense and revenue from operation. So business का operating expense क्या होता है उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस divided by revenue from operation into 100, and this ratio is also expressed in percentage. ओके, सो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको जनरली कंफ्यूज करेंगी कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेट होता है। अगर हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर कॉस्ट बियर करते हैं तो ये भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो तो उसको भी हम उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। Okay, so what is the formula of cost of revenue for operation and what are the formula of operating expense? You know very well. अब यहाँ पे क्लियर ये करना है, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा। If questions asking that, if क्वेश्चन में ये कह दे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, if operating profit ratio is 60%, so what is the percentage of operating ratio? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा कि इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 60%,
So what is the percentage of operating ratio? ओके, सो आपको हमेशा याद रखना है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है तो कित परसेंटेज की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 100 में 60% किसका है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो 40% किसका होगा? ऑपरेटिंग रेशियो का। हमेशा याद रखना है, ऑपरेटिंग रेशियो इज 40%। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो दोनों को मिलाकर कितना परसेंट आता है? 100% आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमेशा याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन में जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है सो परसेंटेज हमेशा क्या आता है? 100 आता है। So please note down in your copy, and in today's class you can see that firstly we discuss the three ratio of the activity ratio, fixed assets turnover ratio, working capital turnover ratio, and current assets turnover ratio, and as well as we also discuss the three important ratio of the profitability, that is net profit ratio, gross profit ratio, operating profit ratio and operating ratio। चार ratios हम लोगों ने डिस्कस कर ली। Okay, so please note down in a copy properly, and in the next video we will come to you and solve all the practical problem related to these ratios. So thank you, thanks a lot, take care.